Hello there. So, this is going to be a new playlist, a new course for all of you guys out there who are beginners in web development industry and who want to learn how they can build really amazing websites without writing even a single piece of code. So, guys, इस पूरी प्लेलिस्ट में, इस पूरे कोर्स में मैं आपको जो है एलिमेंट और पेज बिल्डर यूज करना सिखाऊंगा, कैसे आप एलिमेंट और पेज बिल्डर को वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करोगे और उसके बाद जो है ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर की हेल्प से कैसे आप जो है वेबसाइट्स बिल्ड करोगे, लैंडिंग पेजेस बिल्ड करोगे और अमेजिंग मॉडर्न डिजाइन वेबसाइट्स एलिमेंट और पेज बिल्डर से कैसे बिल्ड होती हैं। तो ये सब चीजें आपको सिखाऊंगा इस पूरी सीरीज में। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो से। आज इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट और पेज बिल्डर के बारे में बताता हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, कैसा है, कहाँ से मिलेगा और कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड एवरीथिंग। So guys, I'm already on the elementor.com website. You can also go to elementor.com and you can see this. You will land on this landing page, their home page, and जो है ये वीडियो एनिमेशन आप देख रहे हो, this is how you can simply drag and drop the elements on your computer, on your web pages and build them. Okay, so I will be explaining everything in detail, but before that, just wanted to share with you that this Elementor page builder comes in two different, I mean, like every tool out there, this also has its a free version and premium version. Okay, so free version में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप जो है अच्छी खासी वेबसाइट्स बिल्ड कर लोगे. इफ यू हैव सम गुड बजट यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्रीमियम वर्जन, और इन द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप प्रीमियम वर्जन फ्री में कैसे, कहाँ से अवेल कर सकते हो, आपको कहाँ पे मिलेगा, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो इफ यू सी द प्रीमियम वर्जन दैट they are selling for one pro website, it's $59 per year, and similarly for other package like 25 websites, it's $199 per year. And also guys, if you see जो premium version है उसमें 100 basic plus pro widgets आते हैं, 300 basic plus pro templates, theme builder, WooCommerce store, and many other things. All right, so that's about that. Let's go to the WordPress backend and I'll show you how you can install Elementor page builder on your WordPress. Now if you are someone who is just the beginner to web development and you have no idea how what WordPress is, how WordPress is installed, and all these things, then I would suggest you to go and watch my no code web development playlist series where I explained everything in detail, what WordPress is, how you can install WordPress on your hosting platform, and how you can start building websites on WordPress. Okay, so this is a bit advanced. We have already installed WordPress and everything, and inside WordPress I'm going to show you how you can install Elementor page builder and how you can make websites with it. Okay, so Elementor page builder को install करने के लिए guys आपको जाना है plugins में here, and you can click on that. Once you click on the plugins, you can click on add new, and यहाँ पे search bar में if you will search Elementor, you will find it, and here you see the Elementor page builder is installed. If you have not installed it already, you will get an install button here, but I have already installed it, but I just need to update it. So I'll click on update and I'll quickly update the page builder. Okay, all right guys, once your page builder is installed, उसके बाद आपने dashboard पे click करना है. You will go to the dashboard of your website, and left side में आपको जो है यहाँ पे एक Elementor page builder का जो है एक tab मिलेगा. This Elementor tab has its own settings. इसमें बहुत सारी settings हैं. If I'll just hover on that, on top of that, I'll see these all options that come up: settings, role manager, tools, system info, getting started, get help, submission, custom fonts, icons, and code. And there is one little button at the bottom, gives us an option to upgrade our free version of our Elementor page builder to the premium version. Now obviously we have just installed the free version, and I'm sure we can do really good with that. Now guys, to start you also need a theme, so it's better to install some good theme that is compatible with Elementor page builder. Okay, so you can go to appearance themes, और उसके बाद वहां पे आप themes में एक बार चले गए. themes में जाने के बाद यहाँ से आप add new theme पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके देखो Elementor की ना एक अपनी थीम है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसमें आपको जो है हेडर फुटर खुद बनाना पड़ेगा, बिकॉज Elementor की जो ये हेलो थीम है, इट्स लाइक अ बेयर बोन. आपको इसमें टेम्पलेट्स वगैरह सिर्फ प्रीमियम खरीदने पे ही मिलते हैं, प्रीमियम Elementor खरीदने पे ही मिलते हैं. बट आई वुड सजेस्ट ये जस्ट इंस्टॉल दिस Astra theme. If you just want to use the free version of Elementor, just install Astra theme and you will be good to go with it, because जो ये Astra theme है, they will give you the header builder, it will give you the footer builder for free, और आप जो है और भी बहुत सारी चीजें इससे कर पाओगे easily. Once the theme is installed, you can go to pages and you can start making your pages with Elementor page builder. Now you can also import the pages directly, import the templates directly, but as this is just video of showing you how you can use Elementor, so we will make the custom made pages on our website.
Okay, so I'll click on add new. Now this is how you add a new page to your website. Here I will just give it a name, Learning Elementor Page Builder. All right, now I have given it a name and I'll click on publish. So पेज बनाते टाइम हम सिर्फ नाम देंगे और उसके बाद हम उसको जो है यहाँ पे इस बिल्डर में, जो ब्लॉक बिल्डर है वर्डप्रेस का अपना डिफॉल्ट बिल्डर, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इंस्टेड यहाँ टॉप में अगर आप देखोगे एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन है, विल सिंपली क्लिक ऑन दैट और ये हमको एलिमेंटोर के एडिटिंग मेन्यू में ले जाएगा, जहाँ पे जो है एलिमेंटोर का एडिटिंग डैशबोर्ड है और जहां से हम पेजेस को एडिट कर सकते हैं, पेजेस को बिल्ड कर सकते हैं, विजेट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। सो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यूजुअली थोड़ा ही टाइम लेगा, कभी कभार अगर ज्यादा भी लेगा तो जस्ट बी पेशेंट एंड लेट इट लोड। ऑलराइट गाइस, लोड हो चुका है यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए दिस इज न्यू। सो गाइस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये टैब्स दिख रहे हैं, ये एलिमेंटोर के टैब्स हैं, विजेट्स हैं जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सेंटर में, और जो सेंटर एरिया है ये बिल्ड करने का एरिया है। यहाँ पे हम जो है पेजेस को बिल्ड करते हैं, पेजेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन बॉटम में है, इनमें से सबसे पहला जो ये सेटिंग्स गियर वाला ऑप्शन है, इस पे अगर क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे आप पेज का टाइटल चेंज कर सकते हो, पेज का स्टेटस चेंज कर सकते हो, उसको पब्लिश्ड रहने दो, या अगर इफ यू वांट टू चेंज इट टू ड्राफ्ट और प्राइवेट और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। फीचर्ड इमेज ऐड करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं, टाइटल को हाइड करना है वो वी कैन डू दैट, और पेज लेआउट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो एलिमेंटोर ना अपने कुछ पेज लेआउट्स आपको देता है। एक एलिमेंटोर कैनवस है, एलिमेंटोर कैनवस पेज लेआउट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपका हेडर और फुटर जो है वो हाइड हो जाता है एंड यू जस्ट गेट द बॉडी ऑफ द पेज। और ये मोस्टली यूज होता है लैंडिंग पेजेस के लिए जिनमें हेडर और फुटर नहीं होता है, जिनमें डायरेक्टली कंटेंट लैंडिंग पेज की बॉडी पे होता है एंड यू जस्ट सी दैट। सो उसके लिए मोस्टली यूज होता है ये वाला पेज लेआउट एलिमेंटोर का। उसके बाद नेक्स्ट पेज लेआउट हमारे पास है एलिमेंटोर फुल विड्थ। इसमें फुल विड्थ कंटेंट होता है, जो विड्थ कंटेंट की विड्थ होती है वो फुल होती है साइड टू साइड। और इसमें दूसरी चीज ये होती है कि इसमें आपको हेडर और फुटर दोनों इंक्लूडेड रहते हैं इस पेज लेआउट में। उसके बाद थीम का अपना डिफॉल्ट पेज लेआउट होता है, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। तो ये वैरी करता है, डिफर्स फ्रॉम थीम टू थीम। किसी थीम में कुछ अलग तरह का लेआउट हो सकता है, किसी थीम में कुछ डिफरेंट होता है। तो यूजुअली हर थीम का अपना होता है, बट एस्ट्रा इज वन ऑफ द बेस्ट थीम्स जिसका लेआउट परफेक्ट है। सो यू कैन ऑलवेज यूज एस्ट्रा विच इज फ्री and which is WordPress's top best theme. Okay, so for our tutorial we'll just select the Elementor canvas layout and हम इसको select करने के बाद जो है यहाँ पे देखो कोई भी change Elementor पे अगर करनी है, अब आपने कोई भी change करी है तो उस change को save करने के लिए you always have to click on update at the bottom here left corner. Okay, so do that and as I've done it, and now if you see that the page layout has changed. Now few more things quickly. अगर आप यहाँ पे top लेफ्ट साइड के इस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें जैसे साइट सेटिंग्स, थीम बिल्डर, यूजर प्रेफरेंस और कुछ और चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को। और आप चाहे इस मेन्यू में किसी भी पेज पे हो, अगर वापस इस होम सेक्शन में आना है यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस आइकन हियर एट द टॉप समवेयर अराउंड सेंटर। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वापस होम मेन्यू में आ जाएंगे एलिमेंटोर के विजेट्स की। ठीक है, नाउ हाउ डज पेज बिल्डिंग वर्क। ठीक है, पेजेस के ना ऑलवेज देखो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जो भी पेज बनाया जाता है, हर पेज का पेज जो है डिवाइडेड होता है मल्टीपल सेक्शंस में। सबसे पहले एक हेडर होता है, हेडर में जो है लोगोज होते हैं, मेन्यूज होते हैं, हायर में जैसे बटन्स होते हैं, CTAs कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं। उसके बाद जो है हीरो सेक्शन होता है, आई मीन यूजुअली जो टॉप सेक्शन होता है उसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है में डिस्क्रिप्शंस वगैरह हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो है पेज डिवाइड होता है मल्टीपल सेक्शंस में। और लास्ट पे एट द बॉटम हम जो है फुटर यूज करते हैं, हम फुटर बिल्ड करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे ये एक फुटर है, यहाँ पे बॉटम में रखा हुआ है मैंने। तो इतना याद रखो कि जो भी वेब पेज होता है इंटरनेट पे उसमें एक हेडर होता है, एक फुटर होता है और एक बॉडी होती है। जो बॉडी होती है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द एलिमेंटोर में आने के बाद आई विल शो यू कि हम जो है यहाँ पे इस टाइम अभी हम हेडर फुटर जो है बिल्ड नहीं करेंगे, वो मैं आप थोड़ा सा एडवांस है तो आगे जाके दिखाऊंगा वीडियोस में कि हेडर फुटर जो है आप कैसे बिल्ड कर सकते हो विद एलिमेंटोर। ओके, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एलिमेंटोर ही सीख रहे हैं इस सीरीज में। तो राइट नाउ आई विल शो यू कि हम सेक्शंस कैसे बिल्ड करेंगे और बॉडी का लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे। तो एक सेक्शन बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे देखो अब हमारे पास ऑप्शंस है सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। तो हमें एक वेबसाइट का जो एक फर्स्ट सेक्शन बनाना है, उस सेक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। डू वी वांट वन कॉलम, like one big column end to end? If I'll click on this, it'll give me a section with just one column. So this is a section here. Let me show you one more thing first. Right here next to the settings gear icon, you see navigator, right? If we click on this navigator, it will open like this, and this is a small window that you can use to navigate through the page that you are editing. तो usually क्या होता है कि जब आप एक पेज को edit कर रहे हो top to bottom, you have multiple sections. I mean, when you are building huge large pages, you have multiple sections. Inside those sections you have multiple columns, you have widgets, and you have a lot of structure, a lot of content on your page. So it becomes a little difficult to navigate through the page and find the content where you are working, or if you have to find something, you can simply use this navigator window. You open it from down there, and then it will open like this. So in this navigator window, I'll show you this one section that I've opened. It's showing it as a section, and if I click on this drop down here, it will open up like this, and inside this drop down it's showing that it has only one column, right? And if I'll click on this here, it will open up like this, and it says कि ये अभी empty है, नीचे इस कॉलम के अंदर अभी और कुछ नहीं है। तो हम क्या है कि हम सबसे पहले सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन के अंदर कॉलम होता है, और कॉलम के अंदर जो है हम विजेट्स यूज करते हैं, जिन विजेट्स में हम कंटेंट डालते हैं। ठीक है, तो ये अभी वन कॉलम वाला सेक्शन है। इफ आई क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन अगेन, और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ थ्री कॉलम वाला सेक्शन, इफ आई क्लिक ऑन दिस नाउ, if you see here in this navigator window, it shows that we have another column here at the bottom, और इस पे मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन ओपन करने के लिए। ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, तो अब आप देख रहे हो हमारे पास इस सेकंड सेक्शन में तीन कॉलम आ गए। फर्स्ट कॉलम ये वाला है, एंड ऑल्सो कीप एन आई ऑन द स्क्रीन। जब भी मैं किसी चीज़ को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ नेविगेटर में, वो चीज़ यहाँ भी स्क्रीन पे सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो देखोगे सेकंड कॉलम भी सेलेक्ट हो रहा है। थर्ड कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो थर्ड कॉलम भी यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो दैट्स हाउ इजी इट इज टू नेविगेट थ्रू द पेजेस विद द हेल्प ऑफ दिस नेविगेटर विंडो ऑफ एलिमेंटर। ऑलराइट गाइस, सो ये हो गया, दिस वाज अबाउट कॉलम्स एंड सेक्शंस, जो आप सिंपली यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और कॉलम्स के अंदर जो है हम विजेट्स डालते हैं। नाउ बिफोर वी गो टू द विजेट्स, आई रियली नीड टू शो यू वन मोर थिंग हियर। दैट्स एक्चुअली अ विजेट, बट इट्स कॉल्ड इनर सेक्शन। ठीक है, सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जब आपने एक सेक्शन बनाया, उसके अंदर एक कॉलम रखा, अब उस कॉलम के अंदर अगर आपको और कॉलम्स चाहिए ना, तो उसके लिए यू विल हैव टू यूज इनर सेक्शंस। ठीक है, तो हम जो है उसके लिए इनर सेक्शन यूज करते हैं। यू सिंपली select the intersection widget from here, and you drag and you drop it inside the column. Okay, so if you see here, I have just dragged and dropped it inside here, और अब इस इंटरसेक्शन के यूजुअली वहीं से हमें दो कॉलम्स बिल्ट इन होते हैं, और उन दो कॉलम्स को हम जो है और मल्टीपल डिवाइड कर सकते हैं, तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। अब मैं नेविगेटर विंडो को बॉटम से फिर खोलूंगा। आई क्लिक ऑन दिस, एंड नाउ आफ्टर दैट इफ यू सी हियर फर्स्ट सेक्शन, then after the section we have our column, and inside the column if you see that we have our intersection here now that I've just dragged and dropped in here. तो intersection के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर एक कॉलम था, एक कॉलम के अंदर जो है मैंने इंटरसेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और उस इंटरसेक्शन के अंदर मेरे दो कॉलम्स। ठीक, गुड सो फार, परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन, लेट मी शो यू now how we can start working and how we can start building. So usually on this home page we have these basic widgets which are pretty self-explanatory. So if you see intersection जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके बाद headings है, headings जो भी headings होती हैं pages की, उनको हम इस text heading से बना सकते हैं। Then we have image का यूज करके हम जो है images अपलोड करते हैं pages पे, text editor का यूज करके हम descriptions डालते हैं। ठीक है, so let me quickly drag and drop few things here and I'll show you. So image के लिए सबसे पहले मैं अगर इमेज को यहाँ पे पकड़ के इमेज को यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो मैं यहाँ पे इमेज को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद I'll go back here, एंड यहाँ से मैं हेडिंग का विजेट भी जो है सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा और इसको ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद गोइंग बैक टू द होम सेक्शन here, एंड देयर आई विल ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट एडिटर। So select, drag and drop. Okay, and also what I'll do is I will drag and drop a button. ठीक है, तो select, drag and drop. Okay, so this is I have dragged and dropped the buttons, image, text and everything. Now if you see abhi bhi this just looks pretty normal, so we'll surely design it, but before that I want to do one thing कि मैं ना इसको थोड़ा सा padding देना चाहता हूँ टॉप एंड बॉटम में। So मैं क्या करूँगा, I'll click on navigator is open here, and I'll first close all these drop downs. ठीक है,
तो नेविगेटर में जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि लेट मी फर्स्ट सेलेक्ट द सेक्शन एंड आई विल शो यू। आई जस्ट सेलेक्टेड द सेक्शन एंड किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट हो, लेट्स से व्हाटएवर इट इज, सेक्शन, कॉलम, एलिमेंट, विजेट, इनर सेक्शन, इनर कॉलम्स, व्हाटएवर इट इज, हर चीज की अपनी एक पैडिंग होती है, हर चीज की अपनी एक मार्जिन होता है। ठीक है, सो मार्जिन एंड पैडिंग दे आर सिंपली स्पेसेस। ये वो स्पेसेस होती हैं जो है सेक्शन के बाहर जो स्पेस होती है उसे मार्जिन कहते हैं, और सेक्शन के अंदर जो स्पेस होती है उसे पैडिंग कहते हैं। नाउ इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक्शन, कोई भी एलिमेंट, विजेट, कुछ भी हो, जो भी पेज बिल्डिंग में यूज होता है, उसकी बाहर जो चीज होती है, उसकी लाइन से बाहर जो चीज होती है उसे मार्जिन कहते हैं, और उसके अंदर जो स्पेस होती है उसे पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस, बट मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरा सेक्शन है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है जो मेन सेक्शन है हमारा। और अगर मैं इसको जो है मार्जिन, यहाँ पे एडवांस में जाके मार्जिन पे क्लिक करूंगा, और मार्जिन पे टॉप एंड बॉटम अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा लेट्स से 100 का, और 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया मैंने। 100 पिक्सल का मार्जिन देने से इफ यू विल सी कि ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग हो गया थोड़ा सा, तो 100 पिक्सल की स्पेस ऊपर आ गई, 100 पिक्सल की स्पेस जो है नीचे आ गई। अब 100 पिक्सल का मार्जिन देने के बाद अगर मैं इसको पैडिंग में जाऊंगा, और पैडिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको चारों तरफ से पैडिंग दे देता हूँ इस सेक्शन को 40 की। तो आपको फिर से यहाँ पे दिखा होगा कि थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, सेक्शन के अंदर जो है थोड़ी स्पेस बन गई है 40 की। लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूं और 40 से कर हटा के मैं इसको 100 कर दूं, तो आप देखोगे कि कितनी चेंज आएगी। देखो यहाँ पे कितनी सारी चेंज आ गई। 100 पिक्सल की पैडिंग देने के बाद इतनी स्पेस जो है इसमें बन गई। तो जब भी आपने स्पेस ऐड करनी है किसी भी सेक्शन के आसपास, नॉट जस्ट सेक्शन, किसी भी एलिमेंट, विजेट या किसी भी कॉलम के आसपास, तो यू सिंपली ऐड ईदर पैडिंग और मार्जिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पैडिंग और मार्जिन ऐड करते हैं ना। ये पैडिंग और मार्जिन चारों साइड से ऐड होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, या तो चारों साइड से इकट्ठे ऐड कर दो। तो इकट्ठे ऐड करोगे तो सिंपली टाइप इट वंस, और यहाँ पे जो है ये लिंक रहता है वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली चारों साइड अप्लाई हो जाएगी सेम। बट अगर सेपरेट आपको अप्लाई करनी है चारों साइड से, तो इस लिंक वैल्यू को आप इस पर क्लिक करोगे और इसको डी लिंक कर दोगे। तो एक बार ये डी लिंक हो गया, उसके बाद आप जो है कस्टम पैडिंग और कस्टम मार्जिन दे सकते हो हर साइड को अपनी अपनी। जैसे टॉप एंड बॉटम यहाँ पे 100 रखी है मैंने, राइट और लेफ्ट को अगर मैं जो है जस्ट 40 रखूंगा, तो आप स्क्रीन पे देखना कि कैसे चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप मार्जिन्स और पैडिंग्स को एडिट कर सकते हो, उनको चेंजेस कर सकते हो उनमें, और पेजेस को बिल्ड कर सकते हो। नाउ गाइज, हमने जो है हेडिंग विजेट डाला है, हमने डिस्क्रिप्शन डाला है, बटन डाला और इमेज डाली है। लेट्स क्विकली मेक सम चेंजेस इन देयर। थोड़ा सा कंटेंट ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको कि वो कैसे काम करता है। सो इमेज पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और चूज इमेज पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं जो है कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकता हूँ। सो आई सिंपली सेलेक्ट दिस इमेज हियर, और इस तरह से ये इमेज जो है निकल के आपके पेज पे शो होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आपको कोई काफी चीजें जो है समझनी है। सबसे पहले ये इमेज का विजेट जो हम यूज कर रहे हैं, इस इमेज के विजेट को एडिट करने के लिए, किसी भी विजेट को एडिट करने के लिए टॉप में एक सिंपल पेंसिल आइकन होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्टली विजेट पे क्लिक करेंगे तो उसके एडिटिंग वाले ऑप्शंस जो है आपको लेफ्ट साइड के इस पैनल में, इस टैब्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड का टैब है, ये हर विजेट का, हर एलिमेंट का, हर सेक्शन का, कॉलम का अपना होता है। ठीक है, तो इस इमेज विजेट का जो लेफ्ट साइड का टैब है, इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं। पहला कंटेंट वाला कॉलम है, दूसरा स्टाइलिंग वाला कॉलम है, और तीसरा एडवांस वाला कॉलम है। जो कंटेंट वाला टैब है यहाँ पे, इस कंटेंट वाले टैब का जो, इसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ ऑप्शंस हैं सेलेक्ट करने की। सबसे पहले चूज इमेज, जिससे आप जो है इमेज अपनी इमेज गैलरी से, मीडिया गैलरी से जो है इसमें अपलोड करते हो। सेकंड होता है इमेज का साइज, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपकी इमेज का साइज क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अभी थंबनेल कर लिया तो इमेज दिख ही नहीं रही है, बहुत छोटी हो गई है। मीडियम करूंगा 300 बाय 300, तो इस तरह से दिखेगी। मीडियम लार्ज करूंगा, आई विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड इफ आई चेंज इट टू लार्ज, ये 120 बाय 1024 बाय 1024 दिखेगी। अगर मैं इसको फुल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से जो है फुल साइज में दिख जाएगी। अलाइनमेंट मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इस इमेज की, ये इधर लेफ्ट रखूंगा, सेंटर रखूंगा, या फिर राइट रखूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने अभी जो है सेंटर रख दिया, या फिर अगर मैं कोई भी ऑप्शन ना चूज करूँ तो भी चलेगा। इमेज का कैप्शन और इमेज का जो है लिंक, वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं जो है कस्टम कैप्शन भी लिख सकता हूँ,
कुछ भी इस इमेज के बारे में लिख सकता हूँ और वो उस पे शो होना शुरू हो जाएगा इमेज पे, या फिर मैं इसको जो अटैचमेंट वाला कैप्शन होता है ऑलरेडी इमेज के अंदर वो शो करा सकता हूँ। यहाँ पे लिंक्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो है हम लिंक ऐड कर सकते हैं इमेज को, या तो मीडिया फाइल का लिंक रहेगा कि कोई भी इमेज पे क्लिक करेगा तो इमेज को डाउनलोड कर लेगा, या फिर कस्टम यूआरएल पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं इमेज के ऊपर जो है एक लिंक यहाँ पे डाल सकता हूँ कि अगर कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो वो इस लिंक पे चला जाएगा जो लिंक मैंने यहाँ पे डाला होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ स्टाइल पे, और स्टाइलिंग में जो है हम इमेज को स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले इमेज की विड्थ जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो स्टाइलिंग होती है मोस्टली परसेंटेज में होती है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, देखो अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये 3% पे आ गई है, मतलब टोटल 100% में से 3% का इसका जो है यहाँ पे साइज हो गया है। अब मैं इसको इंक्रीज करूँ तो इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हो इमेज को अपने पेज पे एडजस्ट करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, लुक्स गुड। 90% पे मैक्स विड्थ जो है इसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और हाइट को भी चेंज कर सकते हो। तो आई यूजुअली जस्ट चेंज द विड्थ और इससे काम हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नॉर्मल इमेज जो दिख रही है उसमें हम ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं उसकी, इसको ओपैक बना सकते हैं, या फिर देखो इस तरह से जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो इमेज जो है वैसे वैसे उसकी ओपेसिटी कम और ज्यादा हो रही है। तो इस तरह से हम इमेज की ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इफ़ यू डोंट वांट तो जस्ट लीव इट लाइक दैट। आप इसके साथ चेंजेस ना करो तो इमेज नॉर्मल रहेगी जैसी है। बट कभी कभार हमको इमेज की जो है बैकग्राउंड्स में जब हम इमेज यूज़ करते हैं या कहीं पे, तो वहाँ पे हमें इमेज की ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी पड़ती है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। उसके बाद CSS फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पे। CSS फिल्टर से जो है आप इमेज को शेडोज वगैरह दे सकते हो, ब्लर कर सकते हो, और बाकी बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ से कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। आई यूजुअली डोंट यूज इट बट यू कैन डू इट इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर डिजाइन। उसके बाद बॉर्डर टाइप जो है दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। तो कभी कभार ना इमेजेस को बॉर्डर्स देने पड़ते हैं, बॉर्डर दे सकते हो यहाँ से इस तरह से। सो बॉर्डर टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप सॉलिड बॉर्डर जैसे मैंने अभी दे दिया, इधर यू कैन गिव इट अ सॉलिड बॉर्डर और अ डबल लाइन बॉर्डर समथिंग लाइक दिस, और अ डॉटेड बॉर्डर, whatever suits you, you can do that from here, from border type. Okay, now I usually use only solid border, so I'll keep it like that, or sometimes images like this I don't use a border, so, but just to show you, तो सॉलिड इज व्हाट आई यूजुअली यूज फॉर अदर इमेजेस। बॉर्डर को भी आप जो है उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। सो यहाँ से दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। अभी जो है इसको लिंक करके रखा है, तो अगर मैं सिर्फ एक फील्ड में ही चेंजेस करूंगा तो वो सब साइड से उसको लग जाएगी। तो जैसे जैसे मैं विड्थ को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इमेज का जो ये बॉर्डर है वो बढ़ रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक अ फ्रेम और समथिंग, सो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। देन मूविंग ऑन, जो है बॉर्डर को आप जो है कलर भी दे सकते हो। इफ यू सी हियर मैंने इसको 6 का बॉर्डर दे दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद बॉर्डर को एक आप जो है कलर देके उसका कोई भी कलर रख सकते हो। लेट्स से अगर मैं थीम का कलर इसको देता हूँ यहाँ पे, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग द इमेज बॉर्डर। और मूविंग ऑन, बॉर्डर का रेडियस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो चेंज। सो इफ आई जस्ट चेंज द रेडियस ऑफ द बॉर्डर हेयर, और अगर मैं इसको जो है 10 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि बॉर्डर के जो एजेस थे यहाँ पे, इमेज के एजेस कॉर्नर्स में, वो राउंड हो गए। पहले वो पूरे एज बन रहा था, पूरा कॉर्नर बन रहा था वहां पे, लेकिन अब वो राउंडेड एजेस हो गए हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा, जस्ट कीप एन आई ऑन द स्क्रीन, कि वो राउंडेड एजेस जो है और ज्यादा राउंड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू क्रिएट राउंडेड एजेस बॉर्डर्स अराउंड इमेजेस। नाउ ये बॉर्डर्स, ये विड्थ, बॉर्डर टाइप सब जो है इट्स नॉट जस्ट फॉर द इमेज, ये आप बाकी विजेट्स पे भी यूज कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट एनी विजेट, एनी कॉलम, यू कैन यूज दीज सेटिंग्स एंड यू कैन बिल्ड योर कस्टम ओन बॉर्डर्स एंड विजेट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव बॉक्स शेडो हेयर। तो बॉक्स शेडो में क्या होता है, सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन हेयर, दैट्स वेयर you can give a little bit of shadow to your images, to your icons, to your text or anything। आपको थोड़ी सी shadow वाला वो visual effect create करना है, you can do it from here। so if you see here already, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो blur 10 का लग गया है ऑटोमेटिकली, और spread जो है वो कम है, spread 0 है। अगर मैं spread को बढ़ाऊंगा तो ये इस तरह से शेडो जो है बढ़ेगी। अगर मैं स्प्रेड को जो है चेंज नहीं करता हूँ और मैं ब्लर को थोड़ा कम करता हूँ 10 से, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है चेंजेस कर सकते हो शेडोज की और इन सब चीजों की। आई यूजुअली डोंट डू इट ऑन इमेजेस, सो आई जस्ट सिंपली रीसेट इट। और देखो अभी किसी भी एलिमेंट की सेटिंग को यहाँ से रीसेट करना हो
तो आप जिस छोटे से रीसेट वाले बटन को क्लिक करोगे तो बैक टू डिफॉल्ट हो जाएगी वो सेटिंग। तो ये दूसरा सेकंड थिंग था इमेज के बारे में। थर्ड, एडवांस में जाने के बाद आपको इमेज विजेट के लिए मार्जिन्स अगर लगाने हैं स्पेसिफिकली इमेज विजेट पे तो यू कैन डू देम फ्रॉम हियर। पैडिंग्स लगानी है इमेज विजेट पे तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। और विड्थ जो है आप इमेज की यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इसको इनलाइन कर सकते हो, फुल विड्थ कर सकते हो, या फिर कस्टम विड्थ दे सकते हैं इस इमेज को। मैंने कस्टम पे क्लिक किया और अगर मैं इसको ऐसे करूँ चेंजेस तो यहाँ से भी ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसके वर्टिकल अलाइन का ऑप्शन यहाँ पे है, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, अप डाउन, और मैं यूजुअली सेंटर ही रखता हूँ इसको। और मैं यहाँ पे विड्थ को ज्यादा चेंज नहीं करता हूँ, तो आई जस्ट कीप इट टू डिफॉल्ट। उसके बाद आते हैं पोजीशंस पे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट रखनी है या फिक्स्ड रखनी है, दिस इज अ लिटिल बिट एडवांस कॉन्सेप्ट, तो ये अगली किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑब्वियसली, और इस पे पूरी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा पोजीशनिंग पे। अभी के लिए जेड इंडेक्स देखो, जेड इंडेक्स में क्या होता है, ये जो वेब पेजेस होते हैं इस पे जो कंटेंट होता है ये लेयर्स में होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जेड इंडेक्स जितना ऊपर होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही वो एलिमेंट होगा उसका, आई मीन जिस एलिमेंट का आपने जेड इंडेक्स रखा है वो एलिमेंट उतना ही ऊपर दिखेगा, ठीक है। ये भी लिटिल एडवांस नहीं है उतना ज्यादा, बट जब मैं कभी किसी चीज पे जेड इंडेक्स लगाऊंगा तो आप एक्सप्लेन अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा, और यू कैन ट्राई इट ऑन सम विजेट्स एंड आपको समझ में आ जाएगा जेड इंडेक्स कैसे काम करता है। फिर CSS ID, ऑब्वियसली अगर आपको कस्टम CSS यूज करना है तो CSS ID और CSS क्लास आप यहाँ पे दे सकते हो, और उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टम CSS का यूज कर सकते हो बॉटम में। ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट इन द फ्री वर्जन, बट अगर आपके प्रीमियम है तो आप जो है यहाँ से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास मोशन इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो इमेज का एंट्रेंस इफेक्ट रखना है, वो कैसा रखना है, जैसे ये अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो इमेज जैसे फेड इन हो जाएगी, अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो फेड इन डाउन होगी, इस तरह से। तो जो एनिमेशंस होते हैं एलिमेंट्स पे, इमेजेस पे या किसी भी चीज पे, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। तो इस तरह से फेड अप, या फिर इफ आई वांट टू चेंज इट टू समथिंग लाइक अ जूम इन, तो ये इस तरह से इमेज आएगी, लुक्स गुड। यहाँ पे एनिमेशन की ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल है, आई कैन चेंज इट टू फास्ट, विल कम लाइक दिस, और आई कैन चेंज इट टू स्लो एंड इट विल कम लाइक दिस। आई थिंक स्लो इज गुड, और लेट्स जस्ट कीप इट टू नॉर्मल फॉर नाउ। तो ये इस तरह से जो है आपको एनिमेशंस इसकी दिखेंगी, एंड यू कैन मेक चेंजेस टू एनिमेशंस फ्रॉम दिस मोशन इफेक्ट्स। देन वी हैव ट्रांसफॉर्म हियर। ट्रांसफॉर्म में आप जो है रोटेट कर सकते हो इसको, ऑफसेट, स्केल, स्कीव, सब चीजें यहाँ से होती हैं। अगेन आई वुड सजेस्ट प्ले विद इट, एंड आपको जो है चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं कैसे इमेज को रोटेट कर रहा हूँ इसको इस तरह करने से। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्राई, एंड यू विल लर्न कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो है इनको चेक कर सकते हो। देखो होवर करने से क्या होता है, लेट्स से अगर मैं इसको रोटेट को मैं जो है बढ़ा दूं, और उसके बाद जब भी मैं अपना माउस कर्सर इस पे होवर करूंगा ना तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। सी दिस इज अ नाइस ब्यूटीफुल एनिमेशन जो आप जो है किसी भी चीज पे लगा सकते हो, और उसके बाद होवर करने पे उसका एनिमेशन ट्रिगर होता है। तो दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर, एंड नॉट जस्ट रोटेट, यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम हियर। तो जस्ट प्ले अराउंड विद इट, एंड आपको जो है चीजें आस्ते आस्ते समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बैकग्राउंड है, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ एनी विजेट फ्रॉम द बैकग्राउंड सेटिंग्स। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में इधर क्लासिक इज कलर, सो इफ आई क्लिक ऑन क्लासिक, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, इमेज दे सकते हो, या फिर आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स, तो आप 2-3 कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स के लिए, और यू कैन यूज देम। इसके लिए कलर कॉम्बिनेशंस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मल्टीपल कलर्स को आप कैसे कंबाइन करके एक ब्यूटीफुल लेआउट बना सकते हो। बट आई यूजुअली obviously use normal basic colors, or they look good. And if I'll try to give it a color, and let's see how it looks. So theme color, and this is how it looks. See, I could change the background color of the image only because this image has no background, that's why it's working. On some images it may not work, so just keep an eye on that, and so do your due diligence, your research to understand it better, and do your practice to understand it in the best possible way. ओके, सो इमेज का भी एक इमेज बैकग्राउंड हो सकता है। दिस इज अमेजिंग। तो इमेज है ऑलरेडी, बट इसको अगर आप इमेज बैकग्राउंड देना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। यू कैन चूज एन इमेज फ्रॉम हियर एंड यू कैन पुट इट इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस इमेज। I'll just select this one just to show you, and click on select. Okay, so this is how it looks. इमेज का भी अपना बैकग्राउंड लग चुका है। I'll just remove it, और यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे तो फिर से आप यहाँ पे बॉर्डर एंड रेडियस चेंज कर सकते हो, बट दिस टाइम दिस will affect the whole image
विजिट, ओके, जो हमने पिछला बॉर्डर और रेडियस लगाया था वो लगा था इमेज पे, बट ये जो है ये विजिट पे लगेगा इंस्टेड ऑफ द इमेज। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट बोथ ऑफ देम वर्क वेल, यू कैन यूज वन ऑफ द अदर। ओके, उसके बाद मास्क है, यू कैन मास्क द इमेज। तो अगर मैं मास्क को ऑन कर दूंगा तो जो इमेज है वो हमारी मास्क हो जाएगी। जो है यहाँ पे आप शेप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है, तो ये एक सर्कल में मास्क होगी इस टाइम पे, मतलब जितना एरिया सर्कल में दिख रहा है उतना ही दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जो है फिट का ऑप्शन है, फिट की जगह आप कस्टम कर सकते हो इसको, और इसको जो है चेंजेस कर सकते हो, जैसे इस तरह से अप डाउन या छोटा बड़ा इस तरह से चेंज कर सकते हो। उसके बाद पोजीशन में जाने के बाद आप जो है इसको सेंटर सेंटर कर सकते हो, और व्हाट यू कैन डू इज आप इसका कस्टम पोजीशन देके इमेज को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे। इस तरह से आप इसको जो है मास्क कर सकते हो इमेज को। अगेन शेप जो है नॉट नेसेसरी सर्कल ही लेना, यू कैन मेक ऑलमोस्ट एनी शेप एंड यूज इट हियर। यू कैन ऑल्सो आई थिंक यूज अ कस्टम शेप फ्रॉम हियर, एंड देन उस कस्टम शेप को यूज करके आप जो है उसमें इमेज को मास्क कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर है, आई वुड सजेस्ट कि ट्राई इट एंड प्ले अराउंड विद इट, एंड ऑब्वियसली यू विल लर्न अ लॉट। उसके बाद रिस्पॉन्सिव में यहाँ पे 3 आपके पास ऑप्शंस है, हाइड डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल। इनमें से कुछ भी ऑन कर दो तो सिंपली वही होगा जो ये बोल रहा है। या तो डेस्कटॉप ऑन करोगे तो डेस्कटॉप पे इमेज हाइड हो जाएगी, बल्कि मोबाइल पे और टैबलेट पे चलेगी रिस्पॉन्सिव मोड में, और डेस्कटॉप पे नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हाइड करोगे जो है टैबलेट पे या मोबाइल पे तो उन पे नहीं चलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन रिक्वायरमेंट, अगर जो है आपको हाइड करने की जरूरत है किसी इमेज को, किसी विजिट को, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। मूविंग ऑन, हमारे पास जो है और भी कुछ ऑप्शंस हैं, बट एट्रीब्यूट्स और कस्टम सीएसएस, तो ये 2 ऑप्शंस जो है हमारे एलिमेंट और प्रीमियम में आते हैं। तो जब मैं प्रीमियम के लिए वीडियो बनाऊंगा, प्रीमियम के ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन दीस थिंग्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई नो एक थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो हो गई, बट गाइज मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड इफ यू आर dedicated and if you are willing to invest your time and efforts, then I'll suggest to go in and practice as much as possible। जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको ट्राई करो, एंड सिर्फ लर्निंग से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाने के बाद जब आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, दैट इज व्हाट मेक्स यू द रियल गुड स्किल। ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो है आपको स्किल बनेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो है आपके लिए मैं ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। टेक केयर, बाय बाय।